Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Light. Introduction. In our daily life, we see a lot of objects around us. These are all colorful and different. On the way to school, we see things like cars, cycles, trees, buses, flowers, and many a times animals. How do you think we see all these objects? Light helps us to see objects. Without light, things cannot be seen. So what is light? Light is a form of energy. All forms of light, whether visible or invisible, begin in atoms. You may know that tiny electrons move about the nucleus of an atom. These electrons carry a specific amount of energy. However, an electron can absorb more energy. Later, the electron may release the energy in a tiny packet called a photon. These photons contain the exact amount of extra energy that the electron has absorbed, no more, no less. Light is made up of these tiny packets of energy or photons. In fact, you can think of light as a stream of photons. अच्छा, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, कलरफुल चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये हम देख कैसे पाते हैं? एक्चुअली लाइट की हेल्प से ये चीज़ें हमें दिखती हैं. अगर लाइट ना हो तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे. सो लाइट एक्चुअल में क्या है? लाइट एक्चुअल में एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जितनी भी आपकी जो ऑल फॉर्म्स है लाइट की, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, वो एटम से आपकी शुरू होती है. ठीक है. टाइनी इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मूव करते हैं और ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करते हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जी को आपके एब्जॉर्ब करता है. लेटर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है एक टाइनी पैकेट में, जिसे कहा जाता है फोटोन. तो ये इन फोटोन में भी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी, ना कम ना ज़्यादा. तो जो लाइट है वो आपके इन छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटोन से बनी है. 12.1 Sources of light. We need a source of light to see things around us. Everything is bright outside during the day because we receive light from the sun during daytime. The sun and other objects that give off their own light are called luminous objects. Stars, a torch, light bulbs, candles, and even fireflies are luminous objects. Objects such as the moon are seen because light shines on them and then bounces off. Objects that can be seen because of the light bouncing from them are called illuminated or non-luminous objects. The sources of light being classified as luminous and illuminated can also be categorized as natural sources of light and artificial sources of light. The sun, the stars, and the fireflies are some natural sources of light. Candles, oil lamps, electric bulbs, and torches are man-made and so are examples of artificial sources of light. देखिए, कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमारे आसपास हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है. अब दिन के टाइम में क्या होता है, सन इतना ब्राइट होता है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. तो देखिए, सन या जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को गिव ऑफ करते हैं, हम उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ऑल दीज थिंग्स गिव ऑफ लाइट, है ना. इवन फायर फ्लाइज, जुगनू जिसे हम कहते हैं, वो भी आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. अब जैसे कि मून है आपका, उसको हम देखते हैं क्योंकि ये शाइन तो करता है बिकॉज लाइट शाइन्स ऑन देम एंड फिर ये बाउंस ऑफ करता है. तो जो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देखते हैं जो लाइट को बाउंस करते हैं फ्रॉम देम, उन्हें हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो जो सोर्सेज ऑफ लाइट उनको कैटेगराइज किया गया है एज ल्यूमिनस एंड इल्यूमिनेटेड. इसके अलावा इनको और भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे कि सन या स्टार्स की या फायर फ्लाइज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज हैं, जबकि कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्चेस हैं, ये सारी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. 12.2 प्रोड्यूसिंग लाइट. Luminous objects can produce incandescent light, fluorescent light and neon light. तो luminous object जो है वो इन lights को produce करते हैं, right? Number 1 है incandescent light. Certain objects can be heated until they glow or give off light. Incandescent lights in your home produce light in this way. For example, inside a glass bulb, there is a thin wire filament made of metal tungsten, which can be heated to over 2000 degrees Celsius without melting. Enough heat causes the tungsten to glow and to give off light. अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हीट किया जाता है until they glow, या लाइट जब वो देते हैं. जैसे आपके घरों में जो बल्ब होता है वो इसी तरह से आपका ग्लो करता है. ग्लास बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर फिलामेंट होती है जो टंगस्टन से बनी होती है और ये इसको हीट किया जा सकता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक बिना मेल्ट किए हुए.
तो इससे क्या होता है कि इतनी हीट हो जाती है जिससे कि जो टंगस्टन है वो ग्लो करता है और फिर वो लाइट को गिव ऑफ करता है। Fluorescent light. Some lamps produce light when they are cool, not hot. Instead of being used to build up heat, electrons are used to bombard molecules of a gas kept at a low pressure and tube. Fluorescent light is cool light that uses much less electricity than incandescent light. अच्छा, कुछ लैम्प्स जो है ना वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जब वो कूल होते हैं, नॉट हॉट। तो इसमें क्या होता है, आपका हीट को बिल्डअप नहीं करना है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज़ किए जाते हैं टू बम्बार्ड मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस जो कि आपके लो प्रेशर पे रखे जाते हैं एक ट्यूब में। तो फ्लोरेसेंट लाइट आपकी कूल लाइट होती है जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज़ करती है कंपैरेटिवली इनकैंडेसेंट लाइट। नियॉन लाइट. Neon lights produce light when electricity passes through tubes filled with gas under pressure. An electric discharge passing through neon gas causes it to give off red light. If other gases are added to neon, other colors are produced. अच्छा, नियॉन लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन ट्यूब्स के थ्रू जिसमें आपकी गैस होती है जो कि अंडर प्रेशर आपके फिल्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो पास हो रहा है नियॉन गैस के, उसकी वजह से रेड लाइट इट विल गिव ऑफ, है ना। और दूसरी गैसेस को अगर ऐड कर दिया जाए नियॉन के साथ तो दूसरे कलर्स प्रोड्यूस होंगे। 12.3 ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. When light falls on an object, the object may allow the light to pass through, reflect it or absorb it. An object may allow some part of the light to pass through it and reflect the remaining. Whether or not an object allows light to pass through it depends on the kind of the material it is made up of. On this basis, substance can be classified into three categories: transparent, translucent and opaque. देखिए, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ना, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अलाउ करता है लाइट को कि वो पास हो जाए, उसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पार्ट ऑफ लाइट को क्या करता है, पास करता है एंड रिमेनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पास होने में हेल्प करते हैं। ये डिपेंड करता है वो किस मटीरियल से बना है। तो इस बेसिस पे सब्सटेंस को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, राइट। If you hold a block of wood or a piece of black paper up to a light, all the light is blocked. Light in this case is not transmitted but absorbed. These substances are said to be opaque. जैसे आप एक ना वुड का ब्लॉक ले लीजिए या ब्लैक पेपर आप ले लीजिए, पीस ऑफ ब्लैक पेपर। अब आप उसको होल्ड करके रखेंगे लाइट की तरफ, तो जितनी भी लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। मतलब लाइट जो है इस केस में ट्रांसमिट नहीं हो रही है बट कि अब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है ओपेक, जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। Why is the sky blue? Why is the sky blue is not really a silly question, and there's a very good scientific answer to it. All the light in the sky comes from the sun. As the white light passes through the atmosphere, it is scattered by particles of dust in the air. Red and yellow light pass through air directly, while blue light is scattered. It is a scattered blue light. दोबारा बोलती हैं यार, कहाँ as the white light से बोलती हूँ, ठीक है। Action. As the white light passes through the atmosphere, it is scattered by particles of dust in the air. Red and yellow light pass through the air directly, while blue light is scattered. It is a scattered blue light that reaches your eyes and you see the sky as blue. अच्छा, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रेड येलो ग्रीन क्यों नहीं होता है? तो देखिए, इसका आंसर क्या है कि आपकी जो वाइट लाइट है सन से जो आती है, वाइट लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से, तो ये स्कैटर्ड होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स एयर में। तो रेड और येलो लाइट जो है वो एयर के थ्रू डायरेक्टली पास हो जाती है, जबकि जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आइज तक पहुंचती है और हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। Substances that allow some light to pass through itself are said to be translucent. If you look through a piece of wax paper or frosted glass and you can see light, but the object you see is unclear and lacks detail. A fuzzy view results because as the light that is transmitted is also scattered. Sometimes light can pass through or be transmitted by the matter it strikes. If the light is transmitted readily, the substance is said to be transparent. Objects seen through transparent substance are very clear. ग्लास, वाटर, एयर आर ट्रांसपेरेंट। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपने फ्रॉस्टेड ग्लास देखा होगा या वैक्स पेपर, आपको लाइट तो नज़र आएगी बट आप किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी सब्सटेंस आपके होते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो लाइट को
सिर्फ थोड़ी लाइट को पास करने में हेल्प करते हैं, ओके। और कई बार जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो जाती है, राइट। अगर ट्रांसमिट हो गई है रेडिली तो वो सब्सटेंस आपका ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आपका ग्लास है या एयर है। अब कांच के थ्रू देखेंगे ना, आपको जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो आपको क्लियरली नजर आएगा। 12.4 रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Activity 1, to classify substances on the basis of amount of light they allow to pass through them. Different materials allow different amount of light to pass through them. Such materials are classified as transparent, translucent and opaque. आपको पता है कि जो substances हैं उनको हम इन 3 categories में classify कर सकते हैं। Beam of light. Light travels in a straight line. The amount of light traveling along a straight line is called a ray of light. A ray of light is represented by a straight line with an arrow head pointing to the direction of light. A collection of rays of light is called beam of light. Beams of light are of 3 types. A parallel beam of light. It is the one in which rays of light are parallel to each other. The distance between the rays remains the same. देखिए आपको पता है लाइट हमेशा ना एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट जो आपका ट्रैवल हो रहा है स्ट्रेट लाइन में उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो जो रे ऑफ लाइट है रिप्रेजेंट कैसे होता है आपकी स्ट्रेट लाइन से, जिसमें आपका एरो होता है विच हेड्स पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रे। अब जो कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट है उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट आपकी होती है 3 टाइप्स में। नंबर 1 है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होती है कि जो रेज होती है लाइट की वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, राइट। ये पैरेलल वे में आती है एंड जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम रहता है। In a convergent beam of light, rays come towards each other. That is, the distance between the rays goes on decreasing till all the rays meet at converge to a point. In a diverged beam, the rays spread out or diverge from a point. The distance between the rays goes on increasing. अच्छा देखिए, ये आपकी पैरेलल बीम है, ये आपकी कन्वर्जेंट बीम है। इसमें देखिए जो रेज हैं आपकी वो एक दूसरे के पास आ रही हैं एंड जो डिस्टेंस है रेज का वो डिक्रीज हो रहा है और वो एक जगह पे आपका मिल जाएगा, यानी कन्वर्ज हो जाएगा। जबकि डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है आपका कि इसमें जो रेज हैं वो आपकी स्प्रेड हो जाती हैं। आप देखिए ना किस तरह से ये स्प्रेड हो रही हैं एंड जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सी दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, राइट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस कैन बी शोन बाय द एक्टिविटी गिवन बिलो। एक्टिविटी 2, टेक 3 कार्डबोर्ड्स ऑफ द सेम साइज, stack them together and make a hole in each by driving a nail through all of them. Fix the cardboard pieces on wooden stands of the same height. To check this, pass a string through the holes with the help of a needle and pull the string taut. Now take a candle with a wick of about the same height as the holes in the upright cardboards. Light the candle and place it near one of the outer cardboards and look at it through the hole in the outer cardboard on the opposite side. The flame of the candle is seen. Now displace one of the cardboards slightly so that the holes are no longer in a straight line. We do not see the flame of candle. This activity shows that light travels in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. अच्छा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसे आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना है। 3 कार्डबोर्ड्स लेने आपको इस तरह से सेम साइज के और सेम डिस्टेंस में आपने होल करना है, ओके। अब आपने क्या करना है, इस तरह से उन्हें रखना है 1 2 3 स्टैक करना है एंड आपने लास्ट में रखना है कैंडल। अब आप इस कैंडल को जलाएंगे। अब ये होल जो है ना इस तरह से आपने इनको स्टैक करना है कार्डबोर्ड की, जो होल है वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन में हो। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको ये कैंडल नजर आएगी जलती हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से ना एक कार्डबोर्ड को आप डिस्प्लेस कर दीजिए। जैसे कि आपने नंबर 2 है इसको हटा दिया, मतलब थोड़ा सा आगे या पीछे कर दिया, जिससे कि आपका क्या होगा कि वो जो आपके होल्स हैं वो सीधे एक लाइन पे नहीं आएंगे। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपको जो कैंडल है ना वो नज़र ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो लाइट जो ट्रैवल आपकी स्ट्रेट लाइन में हो रही थी वो तो हो ही नहीं रही है ना। तो ये एक्टिविटी आपको शो करती है कि लाइट हमेशा ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट. Light travels at an enormously high speed, in fact at the fastest speed known to man. In a vacuum or in outer space, light travels at about 3 lakh km per second. In air, water or glass, the speed of light is slightly slower. The denser the medium, the slower it travels. Light काफ़ी high speed से travel करती है, okay? जैसे वैक्यूम में आउटर स्पेस की बात करें तो लाइट देखिए कितनी
स्पीड से करती है 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एयर, वाटर या ग्लास में जो स्पीड है लाइट की वो थोड़ी सी स्लोअर हो जाती है, तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ही वो स्लो ट्रैवल करेगा। पिनहोल कैमरा। A pinhole camera is based on rectilinear propagation of light, the simplest of all cameras. It has a tiny pinhole to let the light through. The hole has to be small for a sharp image. It consists of a light-proof cardboard box. The face with the pinhole in its center is covered with a black paper. A tracing paper is pasted on the opposite face of the box. The tracing paper acts as a translucent screen. The object, say a man, is placed in front of the hole of the pinhole camera. Light from each part of the object travels in a straight line, passes through the hole of the pinhole camera, and then falls on the tracing paper. An inverted image of the object can be clearly seen on the tracing paper. Say figure 12.7. The inverted image is formed due to rectilinear propagation of light. अच्छा, pinhole camera ना आपका ये भी जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है लाइट का उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये सिंपलेस्ट है अगर हम कैमरास की बात करें। इसमें एक छोटा सा पिन होल होता है जिससे कि लाइट आती है, एंड मतलब लेकिन इतना छोटा होता है शार्प, मतलब उससे इमेज आ सके। इसमें लाइट प्रूफ कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, एंड जो फेस जिसमें आपका विद द पिन होल है आपका, इसके सेंटर में ये कवर्ड होता है ब्लैक पेपर से। ग्रीज या ट्रेसिंग पेपर को पेस्ट किया जाता है फेस ऑफ द बॉक्स की ऑपोजिट, राइट। फिर जो ट्रेसिंग पेपर है वो आपका एज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन एक्ट करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, माना कि मैन है या ट्री है ना, उस पिन होल के फ्रंट में है, तो लाइट जो है ना फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आपके ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, देन वो पास करेगी पिन होल के होल से कैमरा से, एंड देन वो ट्रेसिंग पेपर में बनेगा। तो ट्रेसिंग पेपर में जो ऑब्जेक्ट है जैसे आप देख रहे हैं, चाहे वो मैन है चाहे ट्री है, उसकी इमेज बनेगी बट वो इन्वर्टेड होगी, यानी कि अपसाइड डाउन। जैसे कि आप देखते हैं ये जो आपकी इमेज बनी है यहाँ पे अपसाइड डाउन बनी है, राइट। ये जो ट्री की इमेज आपको नज़र आ रही है, तो ये जो इन्वर्टेड इमेज बनी है ये बनी है बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। 12.5 Formation of shadows. When an opaque object is lighted, some areas located behind the object don't receive light and form the shadow of the object. Light travels in a straight line. It does not go around corners, and for this reason, objects exposed to a single strong source of light form shadows. When we stand in the sun, our shadow is formed on the ground. When we walk in the sun, our shadow moves with us. The length of the shadow formed by sunlight changes with time. This is because the angle between the source, sun, object and the ground changes. Our shadow is very long in the morning, it is shortest at noon. Its length again goes on increasing in the afternoon and becomes very long just before sunset. The sun rises in the east and casts shadows in the westward direction. The sun sets in the west casting shadows in the eastward direction. अच्छा देखिए, जब भी कोई एक आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है इज लाइटेड, तो कुछ एरियाज होते हैं उस ऑब्जेक्ट के पीछे जिनको लाइट वहाँ पे रिसीव नहीं होता, और आपको तो पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब जो लाइट का पाथ उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो फिर क्या बनेगा, एक शेडो बनती है। जैसे आप सन में खड़े हो तो हमारी शेडो बनती है ग्राउंड पे, है ना। जैसे जैसे हम चलते हैं सन में, हमारी शेडो भी हमारे साथ मूव करती है। अब जो लेंथ होती है शेडो की वो बनती है, अच्छा देखिए सनलाइट जो है चेंज होता रहता है टाइम के साथ, क्योंकि जो एंगल होता है ना सन का एंड ऑब्जेक्ट का और जो ग्राउंड का वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आपको देखिए शेडो जो होती है आपकी लॉन्ग होती है मॉर्निंग में, नून में देखेंगे शॉर्टेस्ट, एंड इवनिंग तक आते आते वो और आपकी इंक्रीज हो जाती है। एंड जो इससे आपका देखा होगा कि आपने जस्ट बिफोर सनसेट, है ना, आपकी जो शेडो होती है बहुत लॉन्ग हो जाती है। जैसे सन आपका ईस्ट में राइज करता है तो शेडो बनती है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, सन आपका सेट होता है वेस्ट में तो शेडो बनेगी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। रिमेंबर, opaque objects produce darker shadows than translucent objects. Can you guess the reason? An opaque object cuts off the light totally, while a translucent object allows the light to pass through it partially. A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it. देखिए जो opaque object है ना वो darker shadows बनती है उनमें comparatively translucent, क्योंकि जो opaque objects होते हैं वो लाइट को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हैं, जबकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में वो थोड़ी बहुत लाइट को पास होने में हेल्प करते हैं, राइट। पार्टली इसमें लाइट आपकी जो है आपकी पास होती है, जबकि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हार्डली कोई शेडो बनाते हैं, क्योंकि वो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं करते।
12.6 Eclipses. Eclipses are formed due to shadow cast by the moon on the earth or the earth on the moon. Sun being a heavily luminous body casts shadow of the opaque body, moon and the earth. Natural consequence of formation of such a shadow is an eclipse. There are two types of eclipse, lunar eclipse and solar eclipse. देखिए आपकी eclipses बनते हैं because of the shadow जो कास्ट करता है by the moon on the earth या earth on the moon. तो आपके जो eclipses हैं वो आपके दो टाइप्स के हैं. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं lunar eclipse को. As the moon moves around the earth, it sometimes comes in a straight line with the sun and the earth. When the sun, the earth and the moon are in a straight line with the earth in between, the shadow of the earth falls on the moon, and this is known as a lunar eclipse. During an eclipse of the moon cannot be seen at all, or it can be seen only partially. It occurs only a full moon night. A total lunar eclipse is seen when the moon is in the umbra region of the earth's shadow. Then the moon cannot be seen at all. A partial lunar eclipse occurs when the moon is partially in the umbra and partially in the penumbra region of the earth shadow. देखिए मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है और कई बार ये स्ट्रेट लाइन में हो जाता है सन और अर्थ के साथ. तो जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो जो शेडो होती है ना अर्थ की वो मून पे पड़ती है एंड उसे कहा जाता है ल्यूनर एक्लिप्स. बट इस केस में क्या होता है कि आपका जो अर्थ है ना वो बीच में होना चाहिए, राइट. तो जब एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, मून आपको नहीं नज़र आता, सिर्फ पार्शली नज़र आता है. तो ये आपका होता है हमेशा फुल मून नाइट को. तो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स आपको दिखेगा जब मून जो है वो अम्बरा रीजन में होता है अर्थ शेडो के. तो मून को नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी. पार्शियल लूनर एक्लिप्स आपका कब होता है, जब मून जो होता है पार्शियली होता है अम्बरा में और पार्शियली पेनम्बरा रीजन में होता है. सोलर एक्लिप्स. As the earth revolves around the sun, it sometimes happens that the sun, the moon and the earth come in straight line with the moon in between. अच्छा, सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, देखिए ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे बट इस बार क्या होगा कि बीच में आपका क्या आएगा, मून आएगा. In this case, the shadow of the moon falls on a portion of the earth and this is known as solar eclipse. It occurs only on new moon day. अब देखिए क्योंकि मून आपका बीच में है सन एंड अर्थ के, तो कुछ जो शेडो कास्ट करेगा वो अर्थ पे एंड इसे कहा जाता है सोलर एक्लिप्स और ये हमेशा न्यू मून डे होता है. People living in the region where the umbra portion of the moon shadow is cast do not see the sun at all. They see a total solar eclipse. People living in the area which falls in the penumbra region see a part of the sun and so experience a partial solar eclipse. Solar eclipse should never be viewed with naked eyes. It may cause permanent damage to the retina of the eye. It should be viewed through special dark glasses or a smoked screen. अच्छा देखिए, जो लोग उस रीजन में रहते हैं जहाँ पे आपका अम्बरा पोर्शन है मून शेडो का, तो वो सन को नहीं देख पाते हैं, तो ये टोटल सोलर एक्लिप्स है. एंड जो लोग आपके उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पेनम्बरा रीजन आता है, तो वहाँ पे कुछ पार्ट उनको सन का नज़र आता है, तो वहाँ पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है. तो जब भी सोलर एक्लिप्स हो, सन को कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे जो आई का रेटिना है वो परमानेंटली आपका डैमेज हो सकता है. तो सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए कुछ स्मोक स्क्रीन आते हैं, कुछ स्पेशल तरह के डार्क ग्लासेस आते हैं, तो उनका यूज़ करना चाहिए. 12.7 रिफ्लेक्शन. When light strikes a surface, whether smooth or rough, it can bounce back. This bouncing back of light is called reflection. The surfaces through which light cannot pass but bounces back into the same medium from which it has come are called reflecting surfaces. अच्छा, जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, चाहे रफ हो या स्मूथ हो, ये बाउंस बैक होता है. तो जो बाउंसिंग बैक हो रहा है लाइट का, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो जो सर्फेसेस जिसमें से लाइट पास नहीं होती है बट बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में जहाँ से आई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. नाउ काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन. The type of surface the light strikes determines the kind of reflection that is formed. A mirror is a very smooth surface that reflects light from an object in a regular way. As there is little scattering of reflected light, the image formed is clearly defined and looks exactly like the object. This type of reflection is called regular reflection. It is similar to the tennis ball bouncing off the smooth wall. When you look in a pool of water, you see an image of yourself that is not clearly defined. Instead,
you look a bit fuzzy and your outline keeps changing. The surface of the water is not smooth. As the light is reflected from the uneven surface, it is scattered in many directions. A diffuse reflection or irregular reflection is the result. अच्छा देखिए, जो टाइप ऑफ सर्फेस है ना, वो डिटर्मिन करता है कि किस तरह का आपका रिफ्लेक्शन होगा, राइट? जैसे कि मिरर आपका स्मूथ सर्फेस है, तो इसमें से क्या होगा कि जो लाइट आपके रिफ्लेक्ट होती है वो रेगुलर वे में होंगे, तो मतलब लिटिल स्कैटरिंग होगी रिफ्लेक्टेड लाइट की, तो जो इमेज बनती है वो क्लियरली डिफाइंड होती है और एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जैसे कि आपके टेनिस बॉल आपकी बाउंस होती है ना स्मूथ बॉल से, इसी तरह का है। जैसे देखिए आपका स्मूथ सर्फेस है, इसमें लाइट्स आई, राइट, देन ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, और देखिए ये किस वे में हो रही है। तो ये जो आपका लाइट आपकी जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये आपका है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब आप वाटर में देखते हैं, जैसे पूल ऑफ वाटर है, तो आपको इमेज जो नज़र आती है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है ना, उसमें हम थोड़े से फजी नज़र आते हैं, तो आउटलाइन जो है वो चेंज होती रहती है। तो क्योंकि जो सर्फेस है वाटर का वह स्मूथ नहीं होता है, तो इसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है अनइवन सर्फेस से हो रही है और वो बहुत सारे डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे देखिए आप देखिए किस तरह से लाइट आ रही है और स्कैटर हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में। Although diffuse reflection is not desirable for seeing your image, it is rather important. If the sun's rays are not scattered by reflecting from uneven surfaces and dust particles in the air, you would see only those objects which are in direct sunlight. Places in the shade of trees and buildings and in corners of room would be in darkness. In addition, the glare of the sunlight would be so strong that you will have difficulty in seeing. देखिए वैसे जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है हालांकि अपने इमेज को देखने के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सन की जो रेज है ना वो अनइवन सरफेस से स्कैटर हो जाती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो इससे हमें क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें सिर्फ वही चीज़ें नज़र आती हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में होती है ना। जैसे कि जो प्लेसेस हैं जो आपके ट्री के शेड में होते हैं या बिल्डिंग्स हैं या जो कॉर्नर्स हैं रूम के, वो हमेशा डार्कनेस में रहते हैं। इसके अलावा जो सनलाइट की जो ग्लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हमें देखने में भी डिफ़िकल्टी होती है अगर ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता तो। 12.8 द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी फिगर 12.12 इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल। वी हैव अ प्लेन मिरर M dash. The ray of light which falls on the mirror surface is called the incident ray. It is AO in the given figure. The incident ray indicates the direction in which light falls on the mirror. The point at which the incident ray falls on the mirror is called point of incidence. In the figure 12.12, the point O on the surface of mirror is the point of incidence. You know that when a ray of light falls on a mirror, it sends a ray back in another direction. The ray of light which is sent back, bounced back by the mirror, is called the reflected ray. In figure 12.12, OB is a reflected ray of light. The reflected ray of light indicates the direction in which the ray bounces back from the mirror. चलिए इसे देखते हैं। आपके ये मिरर है M dash, ओके। एक लाइट जो इस पे पड़ रही है ये आपकी होती है इंसिडेंट रे, एंड जिस पॉइंट पे ये मिल रही है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। फिर इस पॉइंट से दिस इज O, ओके। अब इस पॉइंट से अब एक रे आपकी आई है एक सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन अदर डायरेक्शन। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट। यहाँ पे देखिए जो AO है ये आपकी इंसिडेंट रे है एंड OB आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। देन हम इसमें एक अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, दिस इज योर नॉर्मल, तो एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The normal is a perpendicular on the face of the surface from the point of incidence. In figure 12.12, NO is the normal. Angle of incidence and reflection. The angle AON between the incident ray AO and the normal ON is called the angle of incidence or angle I. The angle BON between the reflected ray OB and the normal ON is called the angle of reflection or angle R. Measure angle AON and angle BON. We find that they are equal. We also notice that the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. These two facts are called the laws of reflection.
which can be summarized as under. Number 1, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Number 2, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. चलिए इसे दोबारा एक बार डायग्राम से देखते हैं. ये आपका मिरर है which is a smooth surface. एक रे इसमें आएगी जो आपकी होगी इंसिडेंट रे एंड ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. देन ये रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, एंड नॉर्मल क्या आपका परपेंडिकुलर. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आप मेजर करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, अब आप देखिए ये जो आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों ही सेम प्लेन में. तो ये आपके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. 12.9 mirrors are the best reflectors. When light falls upon an object, reflection, transmission and absorption, all the three take place. For the best reflection of light, there should be no transmission or absorption. This can be achieved by a smooth and shiny surface. The shiny surface helps in reducing the absorption. The smoothness helps in forming a clear image due to regular reflection. That is why a silvered glass is used as a mirror. The glass offers a smooth surface. Silvering makes it shiny and the red paint on the back prevents transmission and protects the silvering. Thus, a polished or silver surface which has the property of reflecting maximum of light is called mirror. देखिए जब कभी भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है ना, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. लेकिन अगर हमें चाहिए बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो वहाँ पे ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए. तो ये हम इसे अचीव कर सकते हैं किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस से. तो जो शाइनी सरफेस होता है वो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है एज स्मूथनेस हेल्प करती है एक क्लियर इमेज के फॉर्मेशन में. तो इसीलिए जो सिल्वर ग्लास होता है उसको एज अ मिरर यूज़ किया जाता है. ग्लास आपका स्मूथ सरफेस है और सिल्वरिंग इसको शाइनी बनाता है, जबकि जो रेड पेंट होता है बैक में वो क्या करता है, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है एंड सिल्वरिंग को प्रोटेक्ट करता है. 12.10 फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. A mirror with a perfectly flat surface is called a plane mirror. Images formed by plane mirrors appear to be behind the mirror. However, that this cannot be so since the mirror is opaque and no light can pass through it. Figure this 12.13 will help you to understand how an image is formed in a plane mirror. A plane mirror is placed perpendicular on a white paper. A pin is fixed in front of the mirror. The top of the pin O serves as a point of object. देखिए एक मिरर जिसका परफेक्टली फ्लैट सरफेस है उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बनती है बिहाइंड द मिरर. हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि जो मिरर होता है वो पेक होता है एंड नो लाइट कैन पास थ्रू इट. अच्छा, अब ये जो फिगर दी गई है इसके हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से इमेज एक प्लेन मिरर में बनती है. राइट, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पिन इन द मिरर एंड फिक्स टू पिन्स A and B such that these and the images lie along the same straight line. Now look from some other direction and fix two more pins C and D such that these and the image of the pin O are along a straight line. Now remove the mirror and the pins. Join point A and B by one line and C and D by another and extend both the lines towards a mirror M1, M2. They may meet the mirror at P and Q. On further extending the lines, they intersect each other at the point I. Join OP, OQ and OI. From point O, rays of light travel in all directions. The diagram shows only two rays marked OP and OQ which enter the eye after reflection from the mirror. The reflected rays AB and CD appear to come from the point I behind the mirror. I is called the image of the point O. The image appears to be inside the mirror and cannot be obtained on a screen placed anywhere behind the mirror. Such an image is called a virtual image. The image which can be obtained on the screen is called real image. Line OI is perpendicular to M1, M2 at R. On measuring, we find that OR is equals to IR. That is the image of eye of object O appears as far behind the mirror as O is in front of it. देखिए आपको क्या करना है, एक पिन जो है आपको मिरर के फ्रंट में प्लेस कर देनी है. जो टॉप है पिन O का वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ओके, पॉइंट दिस, ये जो आपका O है. अब आपने क्या करना है,
पिन की इमेज को आपने मिरर में ऑब्जर्व करना है, फिर दो पिन्स को आपने फिक्स कर देना है ए एंड बी इस तरह से कि वो स्ट्रेट लाइन में हो। फिर आपने दूसरी डायरेक्शन में देखना है और दो और पिन्स को आपने फिक्स करना है जो है आपकी सी एंड डी, इस तरह से कि ये जो है जो इमेज है ना पिन ओ की वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। अब आपने मिरर को रिमूव करना है, पिन्स को रिमूव करना है, ए और बी को आप ज्वाइन करेंगे, फिर सी और डी को भी आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इनको आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, कहाँ, टुवर्ड्स M1, ये जो आपका मिरर है इसके टुवर्ड्स, राइट। अब आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये मिरर पे मिलेंगी एट P एंड Q। देखिए ये P एंड Q पे ये आपके मिले, राइट। अब आपको क्या होगा, जब आप इसे फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को पॉइंट I पे। ओके, अब आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है OP, OQ एंड OI को, ठीक है। आपने जब इनको फर्दर एक्सटेंड किया तो ये I पे मिले और फिर आपने इसके बाद OP, OQ एंड OI को ज्वाइन करना है। अब इसके बाद O से जो रेज ऑफ लाइट है वो ट्रैवल हो रही है ऑल डायरेक्शंस में, तो डायग्राम सिर्फ आपकी दो ही रेज को शो कर रहा है, विच इज़ OP एंड OQ, जो आपकी आई में एंटर करेंगी जब आपका मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपकी A, B एंड C, D, राइट, जो आपकी A, B एंड C, D हैं, दे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट I बिहाइंड द मिरर। ऐसा लग रहा है कि वो I से आ रहे हैं, विच इज़ बिहाइंड द मिरर, राइट। अब I जो है एक्चुअल में क्या है, वो ये जो पॉइंट O है उसकी इमेज है। एंड इमेज कैसे अपीयर हो रही है कि मिरर के इनसाइड है, जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, जिन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइन OI जो है वो परपेंडिकुलर है M1, M2, ओके, M1, M2 आपका जो मिरर है एट R पे। एंड जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि OR और IR वो दोनों इक्वल है, यानी कि जो इमेज है I ऑब्जेक्ट O की वो ऐसा अपीयर होता है कि इट इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज O इज फ्रंट ऑफ इट। Activity 3, using a plane mirror. Number 1, stand 1 or 2 meters away from a full length mirror. Have a friend or classmate make pieces of masking tape at the point on the mirror where you see the top of your head and your feet. Compare the distance between the pieces of tape with your height. Number 3, without changing the position of the mirror, move so that you are at a distance of 4 or more meters from it. Does your image still fill the space between the tapes? देखिए, आपको इसमें अपने फ्रेंड या क्लासमेट किसी की भी मदद से आप कर सकते हैं। आप एक फुल लेंथ मिरर लेंगे, उससे 1 या 2 मीटर भी दूर खड़े रहेंगे, ओके। और इसमें आपने मास्किंग टेप लेना है जो आपने यूज़ करना है मिरर पे, जहाँ पे आपको अपना हेड और फीट का टॉप दिखेगा। उसके बाद आपने कंपेयर करना है डिस्टेंस बिटवीन पीसेस ऑफ टेप विद योर हाइट। अब इसके बाद क्या करना है, आपने मिरर की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, बस आपने 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाना है। फिर आपने देखना है कि क्या जो फिर से आपने वो जो टेप है मास्किंग टेप उसका यूज़ करना है, तो क्या आपकी जो इमेज है वो स्पेस को फिल कर रही है बिटवीन द टेप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। When we see our image on a plane mirror, we find it to be of the same size. The image is also erect. It means our top does not become bottom in the image formed in the mirror. But we find that our left appears right and the right appears left in the mirror. This phenomenon is called lateral inversion. We therefore say that the image formed by a plane mirror is laterally inverted. For example, if we move our left hand, the image appears to move its right hand. All objects undergo through a lateral inversion in a plane mirror. देखिए, जब हम अपनी इमेज को देखते हैं ना मिरर पे, तो हमें सेम साइज़ की तो नज़र आती है, इरेक्ट भी होती है, मतलब हमारा टॉप पे ही रहता है, बॉटम हमारा बॉटम पे ही रहता है। बट एक चीज़ जो थोड़ा सा अलग होती है वो होती है कि राइट हमें लेफ़्ट नज़र आता है जबकि लेफ़्ट हमें राइट नज़र आता है। तो इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि जो इमेज बनती है आपकी मिरर पे, प्लेन मिरर पे, वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। मतलब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड मूव करेंगे तो आपको नज़र आएगा राइट हैंड, राइट। Thus, we see that the image formed by a plane mirror has the following characteristic. Number 1, the image is virtual, means it cannot be obtained on a screen. It appears to be as far back inside the mirror as the object is in front of it. It is of the same size as the object. It is erect but laterally inverted.
सो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Now, activity 4. Mirror images of the letters of the alphabet. Method: write the letters A and B on a paper and face the paper toward a plane mirror. Try to read the letters. You will see a few letters like B as laterally inverted. Find out the letters which look the same in the mirror. The letters A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y look the same because they are laterally symmetrical. Can you write your name laterally inverted? आपको क्या करना है? मिरर में लेटर्स लिखने हैं आपने, राइट, और उसके बाद आपने उनकी इमेज देखनी. जैसे मैं आपको बी का बताती हूँ, देखिए ये बी, आप इसकी इमेज देखेंगे ना, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट. अब राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट नज़र आता है, तो ये इधर हो जाएगा आपका, एंड जो आपका लेफ्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. तो इस तरह से आपके इमेज नज़र आएगी. हालांकि कुछ ऐसे भी लेटर्स होंगे जो आपको सेम नज़र आएंगे, तो इसे आप करेंगे खुद से. 12.11 डिफरेंसेस बिटवीन इमेजेस एंड शैडो. Image. An image is formed when the light is reflected from a mirror or any other shining object. An image is of the same size as the object. An image is erect but laterally inverted. An image gives all the details including colors of the object. Shadows. A shadow is formed when an object blocks light from striking some surface. A shadow changes according to the angle between the source of light, the object and the ground. A shadow, though erect, is not laterally inverted. A shadow gives only a dark representation of the object. देखिए आपकी इमेज कब बनती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से या किसी दूसरे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से. जबकि शेडो कब बनती है, जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. इमेज सेम साइज की होती है जितना ऑब्जेक्ट होता है. शेडो जो है वो एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, मतलब बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड. इमेज आपकी इरेक्ट होती है बट लेटरली इन्वर्टेड, जबकि शेडो आपकी इरेक्ट तो होती है बट लेटरली इन्वर्टेड नहीं. इमेज आपको सारी डिटेल्स देती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, जबकि जो शेडो है वो हमेशा आपकी डार्क कलर की होती है, राइट, यानी ब्लैक कलर की होती है. की पॉइंट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ लाइट. इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बाउंस लाइट ऑफ देयर सर्फेसेस. Light passes through transparent objects, is scattered by translucent objects and is absorbed by opaque objects. The sun, the stars and the fireflies are some of the natural sources of lights. Candles, oil lamps, electric bulbs and torches are some artificial sources of light. The amount of light traveling along a straight line is called a ray of light. A collection of rays of light is called a beam of light. In convergent beam of light, rays come towards each other. In a divergent beam, the rays are spread out from a point. Light always travel in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation. Shadows are formed due to the rectilinear propagation of light. Solar and lunar eclipses are the results of shadow formation. Images formed by plane mirrors are always virtual, erect and laterally inverted. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.